Hi guys and welcome to the Letter Top 3, and today we will be reviewing Spider-Man Brand New Day. So it was an amazing movie. Um, the CGI wise, the action wise, the stunt wise, and like, there was some really amazing cinematic shots. Music wise, Timi Padasan was hitting like a crack. Um, so those were the things that really went well with the movie. And I think this was one of the best Spider-Man suits I have ever seen in all the movies. Talking about other characters, Jean Grey was fabulous. Yeah, there was some like Sadie Sink was fabulous, but whether Jean Grey was fabulous or not, we'll talk about it later on. Ned Leeds was was good. I mean, and like he was sensing that something is missing in his life, and he was looking for it. Zendaya was good. She was amazing. She acted really well, and what they say, um, like some of the moments, first of all, that moment where Zendaya kissed Tom Holland, that totally threw me off. I mean, I was not expecting that she was mind controlled at that time. Then, secondly, like I had a doubt when she suddenly agreed to, come with Spider-Man. That was weird, a bit weird, and how the things were progressing. So it was like very fast. Hold on, it is not even interval. How is this happening? So that was a bit weird. Then, but afterward, when she found Tom Holland's letter, and the way she confronted that, you should have told me. And then she basically finished off the relationship with Tom Holland by saying that, uh, I get it, how why you love her and why she would love you, but because of my memories, I don't really love you. So that was really touching, honestly. Where like after the hospital, he saw Zendaya was holding a necklace, and visited. I think she visited Tom. Uh, After his recovery, or maybe I don't know, like there has to be some time skip there, or I don't know what was the implication behind that scene, because I think this Gaia Tom saga is not over yet. Although it could be over, and then we could see Jean Grey Tom saga. I mean, that would be weird because we know that Jean Grey is mainly famous or mainly popular for her love triangle between Cyclops, Wolverine, and Jean Grey, and so having Spider-Man in there would be a bit awkward. So I don't know what is the plan of MCU ahead. They could very well introduce Gwen's for the next Spider-Man movie, another love interest, and there could be some clashing between Zendaya and that Gwen. That could be possible as well. So yeah, that about it. And now let us just uh, so as you can see that this particular post actually summarized my emotions really well. That why Spider-Man Brand New Day feels more like an MCU future setup than a true straight Spider-Man movie, because first of all, there was no proper villain. Jean Grey is never an MCU villain. Is never a Spider-Man villain. Like that was a bit absurd. Uh, for following reason. First of all, I don't think so. There is a single comic book that Jean Grey and Spider-Man is like fighting each other or even like working with each other. Those are completely two different paras. Okay, yeah, they introduced Addison. I mean, this movie was supposed to be a Spider-Man movie. It came after 4 years, I guess, like 2021, and 4 or 5 years, I guess. And then I came, and then I sit in the movie. I see the whole movie, and I realize this movie was mainly about setup of Jean Grey and X-Men universe in the MC. So that was very weird for me. मुझे like मजा नहीं आया, honestly speaking. And like स्टार्टिंग में ही उन्होंने जो स्पाइडरमैन के जो कुछ कुछ विलन से टूम्बस्टोन को 4 सेकंड का 4 सेकंड का वो दिया, क्या बोलते हैं, 4 सेकंड का उसको स्क्रीन दी मूवी में. देन देयर वाज स्कॉर्पियन जो माइंड कंट्रोल नहीं था, उसको ऐसे चुटकी में निपटा दिया. ये पता लग रहा है कि हैंड से स्पाइडरमैन लड़ चुका है. तो किसी भी स्पाइडरमैन किसी भी विलन से लड़ाई नहीं इसमें, वो केवल जीन ग्रे से लड़ा, जीन ग्रे की माइंड कंट्रोल पॉट से लड़ा. सो इट वाज वेरी वियर्ड टू सी ऑब्वियसली. एंड स्कॉर्पियन वाज अंडरवेलमिंग. सो सूट वाज डिसेंट, बट उसकी ना कोई कैरेक्टर स्टोरी है ना कुछ, समझ नहीं आ रहा भाई. एक तो जब वो माइंड कंट्रोल होके वो इतना कुछ कर रहा था, एंड देन उसके बाद माइंड कंट्रोल होके वो गायब हो गया. देन लाइक स्पाइडरमैन, व्हाट हैपेंड मैन, स्पाइडरमैन ब्रो. इतना भी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी, बट एनीवे. देन एग्जैक्टली, सो मेन इशू वाज देयर हैज टू बी अ मेरे हिसाब से जो इस मूवी का प्लॉट होना चाहिए था, वो होना चाहिए था स्पाइडरमैन फर्स्ट ऑफ ऑल डेयरडेविल को जेल से आज़ाद करा था, ठीक है. मतलब वो जो डेयरडेविल क्या था डेयरडेविल में, एंड देन दे टुगेदर फाइट अगेंस्ट द एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स एंड द फिस्ट. एंड फिस्ट हैज also met with some like super villains, scorpions. Maybe we would have seen the rise of the birth of new Doctor Octopus,
in this movie. Maybe there's a popular villain known as Hammer. He could have been introduced here as well. So स्पाइडरमैन के इतने सारे विलन स्ट्रीट लेवल जो विलन है, आई वांट टू सी देम फाइट. अगर तुम देखो, दो चीज़ें स्पाइडरमैन की, दो ही चीज़ें होती हैं. या तो वो थोड़े डिसेंट लेवल के बहुत सारे स्ट्रीट लेवल हीरोज से विलन से फाइट करता है जो खतरा देते रहते हैं, या तो उसके फ्रेंड्स को, या तो उसकी आंट में को, अंकल को, ऐसा कुछ खतरा, या फिर वो उस गर्लफ्रेंड को, उनको कुछ खतरा करता है. पहली चीज़. दूसरी चीज़, या फिर तो वेनम उसको कब्जा कर लेता है एंड देन वेनम खतरा देता है, या फिर वो खुद ही बन के कुछ एक दूसरे को मारने लगता है, लोगों को मारने लगता है. तो यही होता है, यही है स्पाइडरमैन की मेन क्रक्स. तो ये दोनों चीजें मुझे नहीं दिखी, सो इट वाज वेरी वियर्ड. इट वाज मोर अबाउट स्पाइडरमैन वेलकम टू द एक्स-मेन यूनिवर्स फीचरिंग जीन ग्रे. सो दिस वाज द मूवी टाइटल. दिस शुड हैव बीन द मूवी टाइटल. डोंट मिसलीड अस, राइट? व्हाट द फक इज ब्रांड न्यू डे? क्या न्यू था इसमें? आई थिंक वन मोर स्पाइडरमैन का तुम्हें एक चीज बताओ, स्पाइडरमैन क्या जॉब कर रहे हैं? नो, इट्स सो वियर्ड भाई. स्पाइडर 4 ईयर का जो एमआईटी का कोर्स चल रहा है, जिसमें ज़ेंडाया और नेड लीड्स दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मतलब डिग्री ग्रेजुएट कर रहे हैं. उसमें स्पाइडरमैन का ये दिखा है कि पहले साल की रील एंड लास्ट साल की रील हो गया टाइम स्केप. क्या जॉब करी, क्या पार्ट टाइम करा, क्या करा? कुछ कुछ नहीं. हेल्थ ये कुछ तो दिखा देते यार. कुछ कुछ मतलब ऐसा दिखा देते कि 8 मई का कुछ पेंशन आ रही है, 8 मई की पेंशन आ रही है. टोनी स्टार्क का एक सूटकेस, पैसों वाला सूटकेस रुक गया था, या फिर या फिर या फिर बैंक चोरी कर लिया स्पाइडरमैन ने. कुछ तो दिखा देते कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पेट कैसे भर रहा है न्यूयॉर्क जैसे शहर में. क्वींस, नो आइडिया. स्पाइडरमैन क्या जॉब करता है ये आइडिया ही नहीं है. एंड 4 साल वो कैसे, क्या क्या किया उस 4 साल. वो टाइम स्किप जब वो हुआ ना, मुझे ये लगा यार ये क्या, पहले साल की थी, पहला दिन की थी, लास्ट दिन की हो गया टाइम स्किप. लो चलो, 4 साल बीत गए, कैसे कैसे भाग दौड़ कर ली. एलिवेटर, पता नहीं एलिवेटर बोल रहा हूँ, ट्रेडमिल कहाँ से ले आया, वहाँ पे भाग दौड़ कर रहा है, और वो पता नहीं सेटअप बना लिया, और बाकी कुछ पता नहीं क्या जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, किसी को कुछ. सो दिस वाज अ लूपहोल फर्स्ट ऑफ. सेकंड थिंग, एक इंटरेस्टिंग थिंग. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक इंटरेस्टिंग थिंग. स्पाइडरमैन ने यूनिवर्सल इनहिबिटर बनाया, ठीक है. नाउ हाउ दैट इज अ वेरी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज गोइंग टू बी अहेड इन एक्स-मेन यूनिवर्स. क्योंकि वो इनहिबिटर बेसिकली क्या कर देता है, वो जो भी म्यूटेटेड जीन्स होते हैं, म्यूटेटेड पावर्स होती हैं, उसको सप्रेस कर देता है, एकदम जीरो ही कर देता है, जैसे जीन ग्रे कर देती है. नाउ that would be used by evil organization or anti-mutant squads to kill off the mutants. And ये देख के मैग्नेटो वगैरह, लाइक मैग्नेटो होगा most probably, and they would be really pissed at Spider-Man and they will come after. So ये thing होने वाली. So universe, और उसने अपने लिए भी खतरा कर लिया, बिकॉज अगर उस पर भी लगा दिया जाएगा तो he would be powerless. I mean, लाइक उसने अपना ही एंटीडोट और सब म्यूटेंट्स का एंटीडोट बेसिकली कॉमिक्स में कॉलर वाली थिंग होती है बेसिकली, और इसमें स्पाइडरमैन ने क्रिएट कराया. तो बेसिकली स्पाइडरमैन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ मेनी म्यूटेंट्स, ऑफ इनोसेंस म्यूटेंट्स, एंड दैट वुड लाइक fuck up his mind more basically. So that was a very interesting thing to introduce honestly, and hopefully मार्वल ये मिस ना करे. पता नहीं, हो सकता है मार्वल बोले अरे वो तो ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया. नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इतना लाइक वो काफ़ी टाइम उस पर इन्वेस्ट करा था वो चीज़ करने में, तो ऐसा तो नहीं होने वाला. सो दैट वाज अ गुड थिंग. की गुड थिंग नहीं, मतलब इट वाज लाइक एक तरीके से जैसे ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब बना दिया था. वो आइंस्टाइन से बात करता है कि भाई अब तो होने वाला है, अब तो कुछ मतलब डिस्ट्रक्शन होगी बेसिकली. तो बेसिकली उसने अपनी सब म्यूटेंट जीन्स वालों लोगों की डिस्ट्रक्शन कर दी, यूनिवर्सल इनहिबिटर या व्हाटएवर. सो दैट वाज इट. So these are the few things. No main villain, ठीक है, no main villain, then no main villain, and then no idea what job is Spider-Man doing. So basically हमें उसको grounded life का हमें idea नहीं, ठीक है. What more else? मेजर यही है. एंड हाँ, मेजरली तो यही है चीज़ें. एंड थोड़े लूप होल्स भी हैं इस मूवी में, लाइक लूप होल से मतलब एक तो लूप होल ये है कि फ्रैंक कैसल एक कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर की तरह गोलियां धड़ धड़ करके कैसे चला रहा है भाई. फ्रैंक कैसल का क्या हुआ था आपको मैं याद दिला दूं. फ्रैंक कैसल को सब कुछ छुट्टी छुट्टी मिल गई थी कि भाई ठीक है, क्रिमिनल चार्जेस से हट गए थे. इन की मतलब इसलिए हटे थे कि वो वापस से पनिशर वाली हरकतें ना कर. भाई मतलब कर भी रहा है, करेगा वो तो करेगा, कर भी रहा है तो चुपके चुपके करेगा. बट यहाँ पे तो भाई वो चिल्ला गया, बंदूक लेके घूम रहा है, गोलियां धड़ धड़ कर रहा है. व्हाट वाज दैट?
कॉमिक रिलीफ के लिए पनिशर को इस मूवी में यूज़ किया गया है, लेट्स बी रियल। थोड़े बहुत इमोशनल मोमेंट्स फोर्स करने की कोशिश करी गई है जान बरनाथाल के कैरेक्टर की, बट आई डोंट नो मैन, दिस मूवी अगेन मैं तुम्हें वापस बता रहा हूँ, दिस मूवी शुड हैव बीन अबाउट डेयरडेविल एंड स्पाइडरमैन fighting together along with some other guys, a player fighting together against Jean Grey type of threat, along with anti-vigilante task force with Fisk and some other people around. This should have been the plot. What a plot, भाई! ये plot क्यों नहीं था? एक गोरी स्पाइडरमैन यहाँ वहाँ खा जाता, फिर डेविल से बचा लेता, फिर डेविल कुछ खा जाता, फिर ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। क्या प्यारी मूवी बनती है यार, चार्ली कॉक्स। पहले तो वो डेविल को छुड़ाता जेल से, देन वैसे लेके जाता यार, दिस वुड हैव बीन अ बैंगर मूवी, बैंगर। और देन जीन करके खतरा है ही, फिर जीन के हैंड को कंट्रोल करके वापस से डेविल को डेविल एंड भाई हैंड तो यार, द हैंड इज द मेन विलन ऑफ डेविल। डेविल के अगले सीजन में हैंड लाइक इट इज रूमर्ड इलेक्ट्रा विल लीड हैंड एंड दे विल फाइट डेविल। तो यहाँ पे तो हैंड को कुत्ता बना दिया। द हैंड आर कुत्तास ऑफ दिस वियर्ड एज फोर्स, माइंड कंट्रोल हो रहे हैं, ऐसे चप्पू चप्पू चला रहे हैं, कुछ भी मतलब ऐसी बेइज्जती करो यार हैंड की, तो जो कि सीरीज से प्लान है, उसमें विलन्स प्लान है। हैंड इज अ वेरी रेप्यूटेड निंजा ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट गेट इट। यहाँ पे दे हैव नॉट ओनली ruined Spider-Man, but they have also ruined Daredevil as a character, to be honest. Well, let's see. Like, to be honest, I would rate this. I would rate this movie a solid 6 out of 10. Yeah, hard to 6 only. Generous 6, and I don't know why people are glazing. This is basically, this usually happens when you know what they say. Just after the movie, they are delighted. Oh my god! But if someone has expectations for a movie and they see this, they are usually disappointed, and I am one of those. हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन वाज डिसेंट, ठीक है छोटा, मतलब कुछ भी जबरदस्त। व्हाट हैपेंड टू बैनर, ही इज गॉन बेचारा। अच्छा मतलब लाइक was this MCU's plan to basically sideline Banner from Avengers Secret Wars and Avengers Doomsday? जेल में डाल दिया उसको, जेल में डाल दिया, हो गया उसका जेल में भेज, खत्म। आई थिंक दिस वाज द लास्ट टाइम वी सी बैनर। पता नहीं, मुझे ऐसे ही लग रहा है, मुझे ऐसा फील आ रही है, बिकॉज बैनर की जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स हैं दैट डज नॉट गो वेल विद मार्वल। तो so that's it guys, hope you like the review, let me know.